11th we are focusing on the new topic, that is environmental chemistry. And if you remember the environmental chemistry, it's basically deals with your origin, your transport and reactions, effects and rates of your chemical species, or you can say fates of the this thing chemical species in the environment. So this is your environmental chemistry. Basically you are related with the environment, है ना. तो whatever the things are happening in the environment, चाहे ट्रांसपोर्ट की वजह से, रिएक्शंस की वजह से, उसको कंट्रीब्यूट करता है आपका environmental chemistry. Basically we have to focus on the environmental pollution, and we will see that how the environmental pollution, you know, this is your environment. If this environment is being, अगर ये हमारा environment है and this particular environment is being disturbed due to certain harmful pollutants, or if it's been contaminated in the air, or you know that you're in, basically once before going to, you know, we have soil, we have water, we have our air. If any of these things is being disturbed by any of the you can say pollutants, or any disturbance takes place in the environment, that leads to your environmental pollution. So basically it's not only this thing, ये दोनों conditions, all these things can be arises, disturbance in the soil or the disturbance in the water or disturbance in the air is because of your pollution. This pollutants, harmful pollutants are there, and they may be naturally occurring also, or even artificial activities also, or this brings a drastic change in your environment. ठीक है, तो आपकी सराउंडिंग्स में, एंड इट बेसिकली बिकॉज इफ इट इज़ बीन डिस्टर्ब, इट्स योर अफेक्टेड योर प्लांट्स, योर एनिमल्स, इवन योर ह्यूमन बींग्स आर आपका डिस्टर्ब हो जाता है. ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान देना है. ठीक है, तो दिस कंप्राइज योर इन्वायरमेंट, और दिस लीड्स टू डिस्टर्बेंस इन योर इन्वायरमेंट. सो आई थिंक यू आर क्लियर. इट इज़ अ डिस्टर्बेंस इन द इन्वायरमेंट दैट इज कॉज्ड बाय रिलीज ऑफ हार्मफुल पॉल्यूटेंट्स और कंटेमिनेशंस, contaminates in air or water or soil by natural or artificial activities or environmental pollution. Its effects of undesirable change in our surroundings that have harmful effects on plants, animals and human beings. So this is being arises. और कौन सा substance जो इसको cause कर रहा है वो है आपका pollutants. Pollutants are the main responsible for causing the pollution. So pollutants are the substances, these are the substances which causes your pollution. ठीक है, ये आपके pollutants होते हैं. अब pollutants जो हैं वो किसी फॉर्म में भी हो सकते हैं. They can be solid, they can be liquid, and even they can be in the गैशियस सब्सटेंसेस. ठीक है, किसी भी स्टेट में हो सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है. और ये अब जब ये पॉल्यूटेंट्स आपने डिसाइड कर लिए हैं कि सॉलिड, लिक्विड, गैस कुछ भी हो सकते हैं, तो ये नेचुरली, इट कैन बी नेचुरली अकरिंग ऑल्सो, या फिर आर्टिफिशियल. ठीक है, आर्टिफिशियली किसी भी तरीके से ये पॉल्यूशन हो सकता है आपका. तो इट्स क्लियर टू यू. नाउ दीज पॉल्यूटेंट्स कैन बी, द वर्ड्स यू मस्ट बी हैव हर्ड, डिग्रेडेबल. ठीक है, डिग्रेडेबल होता है और एक होता है नॉन डिग्रेडेबल. अब डिग्रेडेबल वो चीज़ होती है जो कि आप कह सकते हो, जो डिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स हैं उनको आप रिसाइकिल कर सकते हो, लेकिन नॉन डिग्रेडेबल जो पॉल्यूटेंट्स होते हैं, यू कैन नॉट रिसाइकिल देम. ठीक है, अब बेसिकली पता है मेनली जो पॉल्यूशन जो होता है वो, जैसे हम फॉर एग्जांपल हमने एयर की बात करी, तो एयर का पोल्यूशन, क्योंकि हमने तीनों चीज़ें देखी ना, कहीं पे भी डिस्टर्बेंस हो जाता है आपका एयर में, वाटर में या सॉइल में, तो इसमें ये डिस्टर्बेंस कैसे हो रहा है. जैसे फॉर एग्जांपल एयर है, अब आप ट्रांसपोर्ट हो रहा है, तो ट्रांसपोर्ट की वजह से, या फैक्ट्रीज़ हैं उसकी वजह से क्या हो रहा है, एयर पोल्यूशन हो जा रहा है ना, एयर आपकी डिस्टर्ब हो जा रही है. सो आपका, अगर आप उसको देख के चलते हैं वाटर में, तो भाई आजकल इतना वाटर में डंपिंग हो रही है, ह्यूमन बींग्स डाल रहे हैं, फैक्ट्रीज़ की वजह से आ रहा है, तो वाटर डिस्टर्ब, या आप कह सकते हो पॉल्यूटेड हो जाते हैं ना. देन यू कम्स योर सॉइल ऑल्सो, अगेन यू आर यूजिंग so many things, fertilizers you are using, pesticides you are using, they are harmful. Certain chemicals that are coming out from your industries, they are also causing the pollution. So I think this is clear to you. Now we'll focus on the atmospheric pollution first. Let's come to your atmospheric pollution. Atmospheric pollution में हम कुछ चीज़ें, I think you are clear with this thing, that your basically air is being polluted, and it can be solute
pollutants also, even the gases particles also present in the air. तो इसीलिए हमने दोनों चीज़ों को लिख के रखा है कि अगर पॉल्यूशन एयर में कोई गैशियस पार्टिकल्स आ चुके हैं तो क्या पॉल्यूशन होगा, अगर कोई सॉलिड पार्टिकल्स आ गए अनडिज़ायरेबल सॉलिड पार्टिकल्स तो क्या होगा. जैसे फॉर एग्जांपल वी टॉक अबाउट द गैशियस एयर पॉल्यूटेंट्स. इसमें कोई भी गैस हो सकती है, जैसे ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर, नाइट्रोजन या कार्बन या हाइड्रोजन सल्फाइड या हाइड्रोकार्बन्स, ओजोन, कोई भी ऑक्सीडेंट्स, एनीथिंग कैन बी देयर. विल डिस्कस देम वन बाय वन. पर्टिकुलर्स बेसिकली सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं, जैसे डस्ट है, मड है, सैंड है, स्मोक है, फ्यूम्स है, मिस्ट है, स्मॉग है, ये सारी चीज़ें जो हैं आपकी पर्टिकुलेट्स में आती हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल विल डिस्कस अबाउट द एयर गैशियस एयर पॉल्यूटेंट्स. लेट्स टॉक अबाउट इट फर्स्ट. नाउ लेट्स कम टू दिस थिंग. तो हम लोग सबसे पहले गैशियस एयर पॉल्यूटेंट्स को देख रहे हैं. तो सल्फर डाइऑक्साइड को हमने दिया है SO2. You know that basically this is arises because of burning of fossil fuels और कोल फ्रॉम इंडस्ट्रीज़ है ना, इस सबसे होता है. एंड इट इज़ वेरी पॉइजनस टू प्लांट्स एंड एनिमल्स. बेसिकली जो सल्फर डाइऑक्साइड होती है जब ये निकलती है तो ये इट्स योर आइज़ गेट इरिटेटेड, इरिटेशन ऑफ आइज़ टेक्स प्लेस, आइज़ एंड रेस्पिरेटरी डिजीज़ आर देयर. देन इट्स ऑल्सो बेसिकली आइज़ में जब ये इफ़ेक्ट करती है तो रेडनेस हो जाती है आइज़ में, आपको लगता है कि काफ़ी जलन हो रही है. तो दीज थिंग्स आर बीन देयर. इवन इफ़ यू फोकस ऑन द प्लांट्स, सो प्लांट बर्ड्स वगैरह ऑल्सो दे आर, जैसे आजकल अर्ली फॉलिंग ऑफ फ्लावर्स हो रहा है और बर्ड्स हो रहे हैं, फ्लावर बर्ड्स. दैट इज़ बिकॉज ऑफ द सल्फर डाइऑक्साइड. इफ हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ SO2 इज़ देयर इन द एनवायरनमेंट, सो दिस फ्लावर बर्ड्स विल बी fall off from the plants. So it's very important this thing. And you must be hearing about acid rain. So acid, one of the pollutant that is responsible for the acid rain is your sulfur dioxide. ऐसे ही नाइट्रोजन ऑक्साइड को अगर आप देखते हैं, ये भी आपके जैसे ऑटोमोबाइल्स हैं या फॉसिल्स फ्यूल्स हैं, ठीक है, ये दोनों की कंडीशन जैसे बेसिकली है, जैसे ये बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स थे, ठीक है. फॉसिल्स फ्यूल्स जैसे पेट्रोल वगैरह होते हैं ना, जब ये जलते हैं तो उन्हीं को हम फॉसिल्स फ्यूल्स कहते हैं. तो ये भी बर्निंग ऑफ फॉसिल्स फ्यूल से बेसिकली होता है ना. और ये तो कोल से, और जैसे आप है ना, इसीलिए कहते हैं ना कोल को मत जलाइए, ठीक है. इंडस्ट्रियल है, इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस हैं, वहाँ से ये ऊपर वाला कंडीशन रहती है. अब नाइट्रोजन ऑक्साइड को देखें, बर्निंग ऑफ फ्यूल्स, ऑटोमोबाइल्स मेन कॉज होता है इनका, ठीक है. अगर इसका हायर कॉन्सेंट्रेशन को देखें तो ये प्लांट्स की ग्रोथ को रिटार्ड कर देता है, फोटोसिंथेसिस की रेट को घटा देता है. इवन इट इज़ ऑल्सो हार्मफुल फॉर योर लंग्स, इरिटेशन, रेस्पिरेटरी डिजीज़ होती है नाइट्रोजन ऑक्साइड की वजह से. सो जो आपके फैब्रिक्स हैं, मेटल्स हैं, वो भी इफेक्ट होते हैं इससे. दे आर, इट्स वेरी टॉक्सिनिक. नाउ नेक्स्ट कम्स योर हाइड्रोकार्बन्स. हाइड्रोकार्बन्स आर इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ फ्यूल्स इन ऑटोमोबाइल्स. आप यूज़ करते हैं पेट्रोल वगैरह तो ज़्यादातर आपने देखा होगा कि जब आप हमेशा व्हेन यू आर स्टैंडिंग जस्ट बैक ऑफ द व्हीकल्स एंड द गैसेस आर कमिंग आउट, देन यू ऑलवेज कॉजेज नोजियास, ये सब होने लगता है हमें ना. तो हाइड्रोकार्बन्स, क्योंकि ज़्यादातर फॉसिल फ्यूल्स जो होते हैं इनका जब से फ्यूल्स जो हैं जितने भी इनकम्प्लीट, अगर इनका कंबर्शन हो रहा है जो ऑटोमोबाइल से निकलते हैं तो उसमें हाइड्रोकार्बन्स निकलते हैं. क्योंकि वो जो फ्यूल जो बना है पेट्रोल वगैरह आपने देखा वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है, ज़्यादातर हाइड्रोकार्बन्स हैं. तो उनका इनकम्प्लीट कंबर्शन जब होता है देन हाइड्रोकार्बन्स आर रिलेटेड, इट्स कमिंग आउट. जैसे इसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है, वन ऑफ द कॉज ऑफ कैंसर इज़ हाइड्रोकार्बन्स. तो कार्सिजेनिक जो आपकी प्रॉब्लम होती है कैंसर से रिलेटेड, वो होती है जल्दी एज हो जाना, एजिंग होना प्लांट्स में, और टिश्यूज़ डैमेज हो जाना, और लीव्स जल्दी गिर जाना. आपने देखा ना रोड साइड में जितने पेड़ लगे होते हैं प्लांट्स, यू हैव सीन दैट द लीव्स आर शेड एंड दे आर वेरी यंग बट दे अपीयर्स टू बी वेरी ओल्ड प्लांट्स व्हेन द लीव्स एंड फ्लावर्स आर नॉट ग्रोइंग प्रॉपर्ली. इवन दे आर ट्विस्टेड अप, है ना. जैसे स्ट्रेट खड़ी होनी चाहिए तो आप देखेंगे कि जो उसकी स्टेम वगैरह है वो नीचे की तरफ झुक जाती है. दिस इज़ बिकॉज ऑफ द हाइड्रोकार्बन. नाउ नेक्स्ट इज़ योर ऑक्साइड ऑफ कार्बन्स. वी हैव मैनी ऑफ द ऑक्साइड्स. आई हैव जस्ट टुक 2 of them, like carbon monoxide. Carbon monoxide, you know, it's also arises from the incomplete combustion of carbon. It's highly poisonous and it's also very, you know ना कि आपकी जो बॉडी में हीमोग्लोबिन में बहुत जल्दी मिक्स हो जाती है ये. और जैसे ऑक्सीजन मिक्स हो जाता है ना हीमोग्लोबिन में, वैसे ये भी आपके साथ है ना हीमोग्लोबिन में मिक्स होके, आपको याद होगा
कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बना लेती है और ये बहुत स्टेबल होती है। मतलब जितनी स्टेबल तुम्हारी ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ है उसकी 300 टाइम्स ज़्यादा स्टेबल है कार्बन मोनोऑक्साइड। इसलिए कहते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड के इन्वायरमेंट में नहीं रहना चाहिए। अगर आपकी ब्लड में ऑक्सीजन जितनी आसानी से फ्लो कर रही है ना, अगर आप कार्बन मोनोऑक्साइड के इन्वायरमेंट में खड़ा कर दिया जाएगा तो और जल्दी वो डिज़ोल्व हो जाएगी हीमोग्लोबिन में, एंड इट्स यू कैन इमेजिन 300 टाइम्स इट्स मोर स्टेबल। और ज़्यादातर जैसे ऑक्सीजन की फिर लेवल कम होने लगता है आपकी बॉडी में, यू आर गेटिंग हेडेक, आई साइट प्रॉब्लम होने लगती है, आपको नर्वसनेस होने लगता है, यू आर फीलिंग वेरी डिस्टर्ब, इवन कार्डियोवास्कुलर डिस्टर्बेंस इज़ ऑल्सो देयर, है ना, दिस थिंग इज़ बीन देयर। इनफैक्ट जैसे प्रेग्नेंट वुमेन्स होती हैं उनके ब्लड में जैसे कभी कभार जब बच्चा प्री मेच्योर होता है तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड आ जाता है, तो दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द कॉज, एंड लाइक अबॉर्शंस एंड ऑल दीज थिंग्स आर ऑल्सो देयर बिकॉज ऑफ दिस कार्बन मोनोऑक्साइड। उस समय ये सब चीज़ें होती हैं। सो यू आर गेटिंग माई पॉइंट, बिकॉज लेवल ऑफ ऑक्सीजन इज़ डाउन, so these things are happening. Now carbon dioxide, if you focus, carbon dioxide is also very harmful for your this thing, for your body, but प्लांट्स के लिए तो ये अच्छी है, क्योंकि प्लांट्स में क्या है कि एक्सेस में, जैसे प्लांट्स में अगर है तो फोटोसिंथेसिस वगैरह में हेल्पफुल है, लेकिन ओवर एक्सेस भी है, वो भी नुकसान है। यू आर सीन दैट कार्बन डाइऑक्साइड इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑफ योर ग्लोबल वार्मिंग एंड ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो दीज टू थिंग्स आर देयर इन केस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड को ये थोड़ा सा आप ध्यान देना है कि ग्लोबल वार्मिंग और ग्रीन हाउस इफेक्ट पे कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो इफेक्ट करता है, ठीक है। तो बहुत एक्सेस में नहीं होना चाहिए। और ये भी मतलब आपको मालूम है, जैसे आप कोई फॉसिल फ्यूल्स बर्न करते हैं या प्लांट्स रेस्पिरेशन कर रहे हैं तो उसका समय कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है, आप लोग खुद या एनिमल्स खुद रेस्पिरेशन कर रहे हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड इज़ बीन कमिंग आउट। दिस वे यू हैव टू कीप इट इन माइंड। Now children, we are focusing on the global warming, and this thing you are studying from your childhood, but still I want to focus on it. If you remember that, you know that sun is always giving you light and energy, solar energy is also being given. Now this sun is been giving you the solar energy. About 75% of the solar energy reaches to the earth, ठीक है। उसमें से 75 जो है वो अर्थ तक आती है, और जब अर्थ में सरफेस पे आती है तो उस कंडीशन में क्या होता है कि अर्थ दिस एनर्जी, द सोलर एनर्जी इज़ बीन एब्जॉर्ब बाय द अर्थ, एंड सम ऑफ द एनर्जी इज़ बीन रिफ्लेक्टेड बैक, ठीक है। क्योंकि कुछ हद तक तो जो एनर्जी है वो एब्जॉर्ब है, भाई कहीं पे भी ऑब्जॉर्ब होगी, भाई तुमने ली, प्लांट्स ने ली, तो ये सब है, सिर्फ अर्थ ही एब्जॉर्ब नहीं है। अर्थ में जो चीज़ें हैं, प्लांट्स हो गया आपका, एनिमल्स हो गया, ह्यूमन बींग्स, दे आर एब्जॉर्बिंग दीज लाइट्स, एंड रेस्ट ऑफ द लाइट इज़ बीन रिफ्लेक्टेड बाय, बट व्हेन इट शुड मूव्स आउट फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, क्योंकि जब यूज़ नहीं हो रही है तो उसको जाना चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम इज़ दैट वी हैव द दिस थिंग, पॉल्यूटेंट्स आर गैसियस पॉल्यूटेंट्स आते हैं, मैंने कुछ लिखे हुए हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन फ्लोरोक्लोराइड, है ना, CFCs जो हैं, and this thing is been there, your methane is there, ozone is there, water vapor is there. So these gases, gaseous pollutants are always there in the atmosphere. So when these radiation going out, they should move out, कुछ तो चली जाती है, लेकिन some of the radiation is being absorbed by these gases, and this raise the temperature over here. तो बेसिकली क्या होता है, ये टेम्परेचर जो एटमॉस्फेयर का होता है वो बढ़ा देते हैं, एंड योर एटमॉस्फेयर स्टार्ट हीटिंग अप, एंड दिस कॉजेज टू योर ग्लोबल वार्मिंग। क्लियर हो गई मेरी बात? तो होना क्या चाहिए था कि जो गैसेस जितनी एब्जॉर्ब करनी थी, मतलब सोलर एनर्जी एब्जॉर्ब करनी थी अर्थ को, वो एब्जॉर्ब करनी चाहिए थी, उसके बाद क्या है वो चली जाना, उसको ट्रांसमिट हो जाना चाहिए था, रिफ्लेक्ट बैक हो जाना चाहिए था। बट उसके बाद में क्या हो गया, ये पॉल्यूटेंट, गैशियस पॉल्यूटेंट्स आ गए, और इन गैशियस पॉल्यूटेंट्स ने ये जो सोलर एनर्जी है उसको एब्जॉर्ब कर लिए, दे हैव एब्जॉर्ब, एंड बिकॉज ऑफ दिस द टेम्परेचर इज़ बीन रेज्ड अप। इनकी वजह से टेम्परेचर बढ़ गया, क्योंकि ये निकलना चाहिए था सोलर एनर्जी को, लेकिन वो वहीं पे ही अर्थ सरफेस पे ही रह गए, तो उसकी वजह से आपका जो एटमॉस्फेयर है वो, उसका टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज़ होता जा रहा है, एंड दिस लीड्स टू व्हाट, योर ग्लोबल वार्मिंग। आई थिंक दिस कॉन्सेप्ट इज़ क्लियर टू यू। नाउ लेट्स फोकस ऑन द ग्रीन हाउस इफेक्ट. What is greenhouse effect? Now you can focus it from here. Greenhouse effect is a phenomena that results of the atmosphere around the earth absorb the solar energy
and at the same time it's prevent the heat from earth escaping into upper atmosphere, like carbon dioxide and all these things. These gases we have already discussed that they absorb the your radiation and they come back to the earth surface, and they are just leading to your warming of the atmosphere. This leads to global warming, and it's the same global warming is results to the greenhouse effect. The same thing, the global warming which you have discussed is the same. अब ये यूनिवर्सल हो गया, वर्ल्ड में हो गया है, इसी चीज़ को आपने क्या कह दिया है, ग्लोबल वार्मिंग कह दिया है, विच इज़ रिस्पॉन्सिबल टू दिस फिनोमिना दैट इज़ ग्रीन हाउस इफेक्ट. एंड दिस ग्रीन हाउस इफेक्ट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द हाई रेज, यू नो ना. जब ये ग्रीन हाउस इफेक्ट हो रहा है या ग्लोबल वार्मिंग हो रही है तो वो जो वाटर लेवल है आपका वो भी बढ़ रहा है ना. फ्लड्स आ रहे हैं आजकल, आप देख रहे हैं अर्थ में अपने आप लैंडस्केप्स हो जाते हैं ना, लैंडस्लाइड्स हो जाती हैं, एंड अर्थक्वेक्स आते हैं. तो दिस इज़ बिकॉज ऑफ दिस ग्लोबल वार्मिंग ऑन द अर्थ, एंड बिकॉज ऑफ द हाई इन द टेम्परेचर और राइज इन द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ, दिस इज़ different diseases are also prominent. Infectious diseases, you know, dengue, malaria, yellow fever, these things are there because of responsible of the global warming. क्योंकि टेम्परेचर इतना हाई है और ये सब जो मॉस्किटोज़ होते हैं इनको हाई टेम्परेचर ही की ज़रूरत होती है. ठीक है. नाउ ग्लोबल वार्मिंग कैन बी रिड्यूस. हाउ यू कैन रिड्यूस? लाइक लेस यूज़ ऑफ ऑटोमोबाइल्स, या ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं, है ना. और आप इंक्रीज़ ग्रीन कवर, प्लांट्स ज़्यादा लगाएं, ट्रीज ज़्यादा लगाएं, स्मोक्स या ये सब चीज़ें बर्निंग वगैरह हम लोग जो करते हैं वो सब अवॉइड करें. सो आई थिंक दिस इज़ क्लियर टू यू दैट हाउ दिस इज़ बीन हैपनिंग एंड हाउ your global warming or greenhouse effects occurs. So in this video we have discussed about the introductory part of air pollution and environmental chemistry. We have discussed about the gaseous pollutants, and the gaseous pollutants also we have discussed few of them. We have discussed of the global warming. In the next video we'll discuss about the acid rains and the pollutants, and because half of the portion is still remaining, so we'll focus on that part in the next video.